ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉपीज निकालो जल्दी से। निकाली? ओके, what we did yesterday? Binomial probability distribution. Binomial probability distribution, right? So today we go to the brother of the binomial distribution, that is the geometric. That's what geo. So we had a binomial probability distribution. Now we got geometric probability distribution. Okay, so what is the difference? Typically this is the same kind, this is the binomial, but it's a little bit more strict. This is a strict brother, this is the, this is the easy brother, you could say like that. So this will have the same conditions what the binomial had. What were the conditions? Success, and it's also going to have the two outputs, success and failure. No issues, both of them. Finite trials, same. Number third, independent trials have to be, if we toss the two coins, I'm tossing this coin, it has nothing to do with this coin, so they are independent, they don't have anything in between. So this is also have the same thing. Small, both work on the small, we can't have the larger one, so both work on the smaller kind of trials, not the bigger trials, but they are still good than the what we have seen, the variance and all, covariance and all. Okay, and then you do the summation of xi minus x bar, xi minus x bar into yi minus y bar. So if we have the 10 times tossing the coin, that will be a huge calculation. कर तो लेगा वो भी, लेकिन कैलकुलेशन बड़ी ह्यूज पड़ जाएगी. सो ये भी अगर 10, 11, 20 तक भी है तो फिर चलेगा, लेकिन अगर 20 भी है वो ज्यादा हो जाएगा इसके लिए. ठीक है, दैट्स व्हाई वी गो फॉर द पॉइजन, एंड बोथ आर डिस्क्रीट बाय द वे. बोथ आर व्हाट, इसको पूरा ना फिर डेफिनेशन के हिसाब से लिखना. आई एम जस्ट पुटिंग द पॉइंट्स. दिस इज आल्सो डिस्क्रीट. ओके, दिस इज आल्सो फॉर द डिस्क्रीट फाइनाइट independent trials. Okay, gotcha. Then what is the difference? What is the difference? Where is that next page? Somewhere? Page. So what is the difference? We go on. This is the binomial and this is the geometric probability distribution. PD, probability distribution. So what is the difference? The difference is this guy talks about number of successes. Okay, so we have, for example, n number of successes. So we talk about here, it talks about the n number of successes, right? So yesterday we say कि क्या probability है कि 6 times head आएगा, 6 times head. Number of successes are 6. क्या probability है कि less than 6 आएगा, यानी कभी 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4. Again the number of successes, कि एक बार सक्सेस, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया, 6 बार आया, greater than 6. okay, at least 6, यानी कि 6, 7, 8, 9, 10. अगर 10 times हमने जो हमारा जो total number of trials थे वो 10 अगर थे, है ना. So again saying the number of successes. So what is geometric probability distribution actually telling us? बोल दूं, ये सस्पेंस रखूं, बोल दूं? तो वो ये है कि it actually talks about कि n number of failures के बाद अगर आपको पहली बार जो पहली आपको सक्सेस मिली, ठीक है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है. It doesn't talk about the how many times you got the success. It is telling us कि भैया पहली जो सक्सेस मिली, मजा तो उसी में है ना, जो पहली वाली सक्सेस, जो वो वाली मिली. जैसे वो परसों उसकी फर्स्ट पोजीशन आई थी विरदा को, ये इतनी खुश थी पूछो ही मत. ठीक है, ये सिर्फ सबको बोल रही थी मेरे को फर्स्ट पोजीशन आ गई भाई. सर मेरे को फर्स्ट पोजीशन आ गई. सो ये पहली वाली अगर होगी तो वैसे इसको रोज ही आती है. अगर पहली वाली सक्सेस है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है आफ्टर द एन नंबर ऑफ फेलियर्स. ठीक है, कभी आपको पहले ही सक्सेस मिलती है तो उस वक्त 0 फेलियर्स थे. अगर शॉर्टकट में बोले तो अगर हमको इसकी फॉर
मुल्ला निकालनी है। क्या निकालनी है? बाय द वे यू नो मार्केट में बाई का नया स्टाइल है, ये आज का नया स्टाइल, ठीक है। दैट मीन्स दिस इज हार्ट एंड शी कनेक्टेड विद, ओके दैट्स गुड। सो व्हाट आई एम सेइंग कि भैया आपको फेल्योर 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 1 2 3 4 मान लो 5 बारी, 5वीं बार आपको सक्सेस मिली, ये आपकी सक्सेस है। बाकी क्या थे? तो क्या प्रोबेबिलिटी है इसकी कि अगर मैं बताऊंगा 5वीं बार आपको, क्या प्रोबेबिलिटी की 5वीं बार आप पास निकलोगे? आपने कोई एग्जाम दिया, क्या प्रोबेबिलिटी आप तीसरी बार पास निकलोगे? यानी कि आपको 1 2 फेलियर हो रहे हैं, तीसरी बार आप पास निकल रहे हो, क्या प्रोबेबिलिटी आपको पहली बार ही पास निकलोगे? या क्या प्रोबेबिलिटी आपको 10वीं बार पास निकलोगे? आपने ड्राइविंग टेस्ट दे दिया, क्या प्रोबेबिलिटी है आपको 5th टर्न में आप इसको कर लोगे? यार हम बोलते हैं ऐसे कभी कभार, यार अभी तो 1 2 टर्न लगेगी सीखने में, बस 5th में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसकी अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, दैट इज व्हाट इज द जियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी ऑल अबाउट। बाय नंबर बता रहा है कि कितनी बार जीतोगे, क्रिकेट खेला कितनी बार जीतोगे, क्या क्या प्रोबेबिलिटी है कि तू कितनी बार तू 50s करेगा, ठीक है। n number of it talks about n number of successes, gotcha। now it talks about after n number of failures that you get success, what is the probability of that? Okay, what is the probability of success after n number of trials? I should not say n number of failures because हमें वो भी लेना है, काउंट करना है ना, वो भी जो सक्सेस वाला भी। so I should say n number of trials। so this talks about probability of success, probability of success after n, यहां पर लिखेंगे after n number of trials, कि क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको सक्सेस मिलती है 5 ट्रायल्स के बाद। यानी कि 4 ट्रायल्स में तो फेलियर है, 4 ट्रायल्स में, और ये वाला सक्सेस है। तो इस डेफिनेशन में इसकी फॉर्मूला निकलेगी, सीधी सी बात है, इसी डेफिनेशन में। व्हाट इज द व्हेन वी से सक्सेस, उसको किससे दिखाते हैं हम? पी से। वी शो इट विद जो चीज हुआ ना, जो आपका इवेंट था, जो आपका हुआ, जो फेवरेबल इवेंट था, जो अगर वो हुआ वही हो गया ना सक्सेस। आपने हेड मारी, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, दैट इज पी। एंड व्हाट विल बी द कि हेड नहीं था, दैट इज शोन बाय क्यू, राइट, बिकॉज पी मीन्स सक्सेस and q is actually 1 minus p, right, because we know p plus q got to be 1, total probability always 1, तो पता है ना, मैं पढ़ा था हमने। so p अगर p है तो q क्या निकलेगा बराबर 1 minus p, 1 minus p, so that is your failure, this is your failure and this is your, so p is the, so p is what, and q is the, and q is always equal to, got it? So if we say here that we got 1 2 3 4 failures, so what will be shown by q, this one, this one, this one, this one, so how many q's? क्या अगर ट्रायल 5 थी, अगर ट्रायल क्या थी, so कितनी बार फेल हुआ फिर? so n minus 1 times, so can't I write this as q raised power n minus 1 into p? so this is my formula for probability of, we say write x is equal to x is equal to this thing, this is the formula। so formula is p x equals to small x, यानी कि कितनी में, after which trials, how many trials, this x small x is say for example here 5 times, कि आपको formula निकलेगी इसको q raised power n minus 1 into p। what is q raised power n minus 1 क्यों लिखा मैंने? because after अगर n है, क्योंकि n में लास्ट वाला तो सक्सेस है, सो अगर 5 ट्रायल्स थे, 5 वाली सक्सेस है, 4 वाले फेलियर्स हैं, तो 4 क्यूज है ना फिर, गॉट इट? सो दैट इज n minus 1, q raised power n minus 1 into p। so what is the formula? गॉट इट? बाइनोमियल में एक और चीज हमारे पास है, व्हाट इज द फॉर्मूला बाइनोमियल? नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, ओके, दिस इज बाइनोमियल एंड दिस इज
geometric probability distribution. Yeah, this is NCR, P raised power R. What is the formula of this one? Probability of, so probability of x is equal to got it? बोलना नहीं अब, ठीक है? हाँ, हम वही कह रहे हैं ना कि क्या क्या प्रोबेबिलिटी है? नहीं नहीं, वो अलग चीज हो गया. हमें देखना है कि अगर मैं पांचवी बार कह रहा हूं, आई हैव टू से कि पांचवी बार की क्या प्रोबेबिलिटी है कि इसमें सक्सेस होने की. हम यही बात बोल सकते हैं तीसरे को भी, हम कह सकते हैं चौथे को भी. मेरी बात तो सुनो पहले, मैं बोलूँ, हम ये नंबर ऑफ ट्रायल्स की बात छोड़ो, जो जिसकी बात आप कर रहे हो ना वही नंबर ऑफ ट्रायल्स बनेगा. अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे क्या प्रोबेबिलिटी की तीसरी बार, मैं दूसरी बार भी निकल सकता हूं, लेकिन प्रोबेबिलिटी जो होती है ना वो मीन पे काम करती है. कभी इधर भी होगा, कभी उधर भी होगा, हम मीन पे आते हैं ना. फिर प्रोबेबिलिटी मीन पे आती है ना. फिर तो मीन का मतलब क्या है? बीच में थोड़ी ना. अगर आपका मीन निकल गया 50, इसका फॉर एग्जाम्पल जो स्कोर किया, तो वो क्या रोज ही 50 करेगा? कभी 0 भी होगा, कभी 100 भी करेगा. तो हम फिर मीन 50 निकालते हैं. हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं. हम क्या कह रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस एट थर्ड ट्रायल. सो दैट मीन्स कि 2 ट्रायल में फेल हो गया, इसमें ये पास हो गया, तो भैया प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी? जितने क्यूज हैं इनटू पी जो है, ठीक है, क्यूज विल बी इक्वल टू n-1. अगर n3 है तो q 2 है. फिर जिसकी बात हो रही है, जो सक्सेस की बात, जिस ट्रायल की, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं क्या प्रोबेबिलिटी है कि तीसरी बार तू, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम कमिंग फ्रॉम माई होम टू द कॉलेज, वहां ट्रैफिक लाइट्स बहुत सारे हैं, ठीक है, तो मेरी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब मैं तीसरी लाइट पे पहुंचूंगा तो वहां ग्रीन होगा, ठीक है, आगे भी ग्रीन हो सकता है, लेकिन उसका मतलब हो गया कि पीछे वाले 2 जो थे वो क्या थे? रेड, ठीक है, और जो ग्रीन वाली मिली वो तीसरी, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? ठीक है, वो बंद भी मिल सकती है, फिर वो नहीं, लेकिन उसकी क्या प्रोबेबिलिटी हम बोलते हैं ना चांस, क्योंकि जब हम टॉस करते हैं सो वो टेल भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है, वी डोंट नो. लेकिन मैं कह रहा हूं क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड आएगा? क्या वो उसका मतलब है कि वो हेड ही आएगा क्या? वो टेल भी आ सकता है ना. सो इसी तरीके से मैं कह रहा हूं क्या प्रोबेबिलिटी है कि ट्रैफिक लाइट ग्रीन हो, ठीक है, ओके. इसमें एक और चीज होता है कि इसका अगर इसका मीन निकालना होगा, दैट इज n इंटू पी, ओके. और इसका अगर हम देखेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन, व्हाट इज स्टैंडर्ड डिविएशन? दैट इज द अंडर रूट ऑफ वेरिएंस. स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ n p q. ये इसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकल रहा है, ठीक है. इफ यू डू सेम थिंग हियर in the geometric probability distribution, इसमें हमारे पास मीन निकलेगा बराबर 1/p के, ठीक है, 1 डिवाइड बाई p, np, नंबर ऑफ ट्रायल्स. आता हो गड़बड़, एक्सक्यूज मी, उधर क्या है? उधर वो क्या, जरा देखो क्या बोल रहे हैं, कहाँ है? एम है यार, ये तो गई है, ठाकुर तो गियो, ओके. इसका मीन निकलेगा 1/p, और जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, स्टैंडर्ड, वो निकलेगी बराबर q/p के, उसका रूट अंडर रूट ऑफ q/p, अंडर रूट ऑफ q/p, ये बाय स्टैंडर्ड डिविएशन. फॉर्मूला याद रख लो, सिंपल सी फॉर्मूला है, वो 1/p है, या अंडर रूट ऑफ q/p है, बस. इसका अंडर रूट np क्यों है और np है. इस पे सवाल आते हैं कि भैया स्टैंडर्ड अगर बाइनोमियल से है तो उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन बताओ, उसका मीन बताओ, तो ये करना है, ठीक है, ओके, गॉट इट. सो व्हाट इज द मीन ऑफ आवर जीपीडी? व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिविएशन?
याद तो अभी आपको रहेगा नहीं, तो नेक्स्ट जाए, फिर पेज ऑफ करें, ठीक है। अब किसकी टर्न है? फॉर्मूला हो गई, कॉन्सेप्ट हो गया, अब किसकी टर्न है? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या बोला? ओके, द exam pill. You can take this pill in the exam also, right? So exam pill. So exam pill में हम क्या बोलेंगे? भैया लाइट में आ रहा हूं मैं, लाइट फंस गया, ठीक है। क्वेश्चन यू है, अर्ज किया है कि जुनैद सर आ रहे थे कॉलेज, क्या आ रहे थे, और कमबख्त हुकूमत ने बहुत सारी वहां पे ट्रैफिक लाइट्स डाल दी है, ठीक है, इधर भी लाइट उधर भी लाइट, तो क्या प्रोबेबिलिटी है? और मैं उधर से ही क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 0.2 जो है प्रोबेबिलिटी है कि जुनैद सर बिल्कुल बादशाह की तरह घुसेगा और ग्रीन हो जाएगा सारा, ठीक है। वाह वाह, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? सो व्हाट, क्या अगर हम बोलेंगे इन टर्म ऑफ पी क्यू वगैरह वगैरह, व्हाट इज दिस, कि जुनैद सर जा रहे हैं बादशाह की तरह, वो कब जाएंगे? जब ग्रीन होगा ना, उसकी 0.2 है। So that is gonna be the P, right? So this is the P, right? So question है कि हम रास्ते से जा रहे थे, ठीक है, और आइसक्रीम भी खा रहे थे, और रास्ते में मिल गई हमारे पास क्या? ट्रैफिक लाइट। लेकिन बहुत सारी ट्रैफिक लाइट्स हैं, और इन बहुत सारी ट्रैफिक लाइट्स में प्रोबेबिलिटी घुसने का कि ग्रीन होने का 0.2 है, ठीक है। सो क्वेश्चन इज व्हाट, हम रास्ते से जा रहे थे। By the way, excuse me for my spelling, not handwriting, okay? Because I don't write, I type from a long period. हम रास्ते से जा रहे थे, तो आइसक्रीम ये रही आपकी, वो आप खा लेना, ठीक है, मुझे भी देना थोड़ा सा लास्ट में, ये वाला एटलीस्ट। तो रास्ते में हम जब जा रहे थे आइसक्रीम खा रहे थे, क्या वहां पे मिली क्या हमें? ट्रैफिक लाइट, लेकिन बहुत सारी, लेकिन बहुत नहीं, बहुत। सो बहुत सारी ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक मिल गई, लेकिन जो बादशाह है, हाँ कैसे बनाते हैं यार वो, ये मान लो कि ये ताज है, मान लो आज मान लो बस यानी कि बादशाह की तरफ जाने का, यानी कि ग्रीन होने का, यानी कि प्रोबेबिलिटी, एक ही उर्दू वर्ड लिखा मैंने इसमें, जो ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी है वो है 0.2। व्हाट इज इट? ठीक है, बात समझ आई? तो हमें बताना है कि पहले आप मुझे बताओ व्हाट इज द, यानी कि अगर आप इसमें करना चाहते हो व्हाट इज द, ये तो मैं हर एक की बता रहा हूं ना, 0.2 इज हर एक, ये सक्सेस है, ठीक है। किसी भी ट्रैफिक लाइट पे ग्रीन लाइट हो, कि मैं आऊं, ग्रीन लाइट हो, कोई भी ट्रैफिक लाइट हो, वो 0.2 है, ठीक है। अब मुझे ये बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कि मैं किसी भी ट्रैफिक लाइट पे आऊं आफ्टर फेलियर्स, आफ्टर, यानी कि यहां से सब रेड रेड मिल रहा है, ये वाली मिल रही है मेरे को ग्रीन, या यहां से सारा रेड रेड मिल रहा है, ये वाला मिल गई ग्रीन, ठीक है। यानी कि मैं चाहता हूं कि मैं जियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करना चाह रहा हूं, कि मैं चाहता हूं कि आफ्टर फेलियर्स आई एम गेटिंग ए सक्सेस, आई एम गेटिंग व्हाट। सो उसको कैसे बोलूं मैं यहाँ पे शायराना अंदाज में, समझ नहीं आ रहा मेरे को, आपको बात, क्वेश्चन समझ आ रहा है? कि मेरी क्वेश्चन मेरा ये है कि मैं क्वेश्चन मेरा ये है कि मैं किसी भी ट्रैफिक लाइट पे, पहले ट्रैफिक लाइट, किसी भी ट्रैफिक लाइट पे ग्रीन होने का 0.2 प्रोबेबिलिटी है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आफ्टर फेलियर्स फ्रॉम अदर्स, कि मैं किसी ट्रैफिक लाइट पे पहुंचूं और वो ग्रीन हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, उसकी क्या, और वो क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो यानी कि मैं जियोमेट्रिक मीन ढूंढना चाहता हूं इसमें, जियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी, जियोमेट्रिक मीन ही होगा ना वो, व्हाट, क्योंकि जियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी अगर मैं ढूंढना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं सब की बात कर रहा हूं, तो मीन होगा। सो वो, क्योंकि अगर हम किसी पर्टिकुलर की बात करेंगे तो उसमें बोलना पड़ेगा कि तीसरे वाले ट्रैफिक लाइट पे, चौथे वाले ट्रैफिक लाइट पे, तो वो आपको जियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी वहां निकालनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं किसी के भी, अगर मैं क्या कर रहा हूं,
तो उस यानी कि आफ्टर फ्यू फेलियर्स फ्रॉम द प्रीवियस वन, कि मैं किसी भी ट्रैफिक लाइट पे आ गया और वो सक्सेस हो गई आफ्टर एन नंबर ऑफ फेलियर्स, ठीक है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, चाहे वो कोई पहली वाली ट्रैफिक लाइट हो, उसमें इससे पहले जीरो था, क्यू जीरो था, अगर मैं दूसरी वाली पे था तो उसके लिए क्यू वन है, अगर मैं तीसरी पे कर रहा हूं बात तो उसके लिए क्यू कितना है, टू। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है वो हम निकालेंगे मीन, क्या निकालेंगे, ठीक है। और फिर अगर क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे हम और बोलेंगे बताओ स्टैंडर्ड डिविएशन भी क्या थी इसकी, क्या थी, और फिर और एक क्वेश्चन मारेंगे इसके ऊपर कि आप बताओ मेरे को जो तीसरी वाली है, क्या है, तीसरी वाली ट्रैफिक लाइट है वो ग्रीन होगी और बाकी सारी आपको ग्रीन नहीं मिलेंगी, यानी कि आपको फिर उसका जियोमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा। गॉट इट। सो क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा हो गया। तो पहले हमने जो बोला कि प्रोबेबिलिटी किसी भी घुसने की क्या है, सो P is 0.2, what will be Q then, 1 minus P, 1 minus that is 0.8, सीधी सी बात है, 0.8 is then 1, ठीक है। सो जो पहला क्वेश्चन मैंने बोला कि क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या, कि आप किसी भी लाइट पे आगे वो ग्रीन होगी बट आफ्टर एन नंबर ऑफ फेलियर्स, तो वो मीन हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे उसका, सो मीन किसके बराबर निकलेगा यहाँ पे, 1 by P सीधे, व्हाट इज 1, व्हाट इज P, सो फिफ्थ, सो 5, यानी कि जो मीन है कि मीन फिर इसका ये निकलेगा कि 5वें पे प्रोबेबिलिटी है कि फिफ्थ ट्रैफिक लाइट ग्रीन हो, ये मीन है, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन इज कि इसकी स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होगी, विद स्टैंडर्ड डिवीजन बताओ, विद द स्टैंडर्ड डिवीजन भी म्यू और दिस और स्क्वायर, will be square of this or only this is equal Q by P equals to, what is Q, do you have under roots, open the phone, write root of 0.8, write root of 0.8, गूगल में लिखो सीधे रूट ऑफ 0.8, गूगल में लिखो रूट ROT ऑफ 0.8, कितना आया, वट एवर, उसको डिवाइड बाई 2 करो, कैलकुलेटर दिया ना इसने वहां, डिवाइड बाई, हाँ, व्हाट इज दैट, 4.4, so this will be your standard deviation of it, हाँ, this will be the 4.47 will be the standard deviation. Now question says, now question is progressing, it is telling the other question, now the next question of it is कि भैया आप मुझे ये बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि तीसरी ट्रैफिक पे लाइट जुनैद सर आ गया और वह हरी हो गई, क्या हो गई, यानी ग्रीन हो गई, लेकिन अब हमें x का वैल्यू दिया हुआ है, सो दैट मीन्स कि क्या प्रोबेबिलिटी है, अगर यहां पे जाऊंगा मैं, now I am saying what is the probability, question is what is the probability of third street light, वह स्ट्रीट है कि क्या है, street light turns green, okay, what is the probability of third street light turns green first time, that should be the first green, that should be the first success, that should be the as a first success, whatever the question can be, you can understand by that कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, कोई भी क्वेश्चन हो, फिर आई एम पुटिंग योर जनरल थिंग, ओके, कि यानी कि अब उसकी मीन भी आ गया, स्टैंडर्ड डिवीजन भी आ गई, अब हम बोल रहे हैं कि थर्ड वाली स्ट्रीट लाइट कौन सी, दैट इज टर्निंग ग्रीन एज अ फर्स्ट सक्सेस, यानी कि पहली सक्सेस वो मिल गई, ठीक है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, सो डेफिनेटली फॉर दैट P of x is here 3 equals to what, tell me, Q raised power n minus 1 into P, so what is Q, n minus 1 is, because I am talking of 3, so it should be x minus 1 here, huh? Because I am talking in terms of x, okay,
x minus 1 is 3 minus 1, that is 2. 0.2 raised power 2 into 8 है. Okay. So 88 are 64.64 into 0.2248, 26 are 12, 3 बार को 0.128. So that is 0.128 is my probability. My probability that I go to the third street light and it turns green is 0.128. Gotcha or not gotcha? कुछ समझ आया? Do you want me to revise things? Anything you want me to revise? Sure? So, call today then.